ठीक है, तो आपने क्या करना है इन 2 दिन में 3 दिन में, स्पेशली एसएपीएम, देखो एडवांस कॉस्टिंग की मैंने पहले पूरी एक एक चैप्टर वाइज रिवीजन दी हुई थी, इफ यू रिमेम्बर। हाँ, आपको याद है मैंने एडवांस कॉस्टिंग की रिवीजन ली हुई थी, पूरा एक एक चैप्टर, लिटरली चैप्टर वाइज रिवीजन किया था हमने। बट नाउ इट इज रियली, आई मीन इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरी चैप्टर and solve your doubts. No, it is not possible. But what we can do is, you take all your doubts in one page. I mean, write them down in one page, in a piece of paper, and then we can slowly and gradually discuss with such doubts. Same way we can do it with advanced costing also. So today I'm not going to start with each and every chapter and end Okay. with whole of the subject. I will not be able to do that. Instead, if you have any doubts, please ask me. And before that, let me give you an assurance, 100% assurance that your exam is going to be very good only if you study. It is very easy. It is not a tough exam. सबसे बड़ा benefit, the biggest benefit that you are going to get is the paper will be very easy because there are only and only 50 MCQs. Let me highlight that the paper is going to be very easy. Only 50 MCQs are there with just 4, each of them will be having 4 options. So you guys have studied a lot. You have got so much time to study your subjects. Only those 6 subjects, you have got so much time for that. So you guys need not worry about that because हमारी तो रिवीजन भी हो चुकी है एक सब्जेक्ट की, और नंदिनी मैम ने भी मुझे बताया था, उन्होंने आपको पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करवाया था। जब मैंने रिवाइज कराया ना, उसके बाद मैम ने भी करवाया था। सो आपको तो बिल्कुल टेंशन ही नहीं करना चाहिए। और सिर्फ 50 MCQs हैं। You just have to make sure that your internet connectivity is strong. You have a good infrastructure like mobile phone, laptop, computer, जिसमें आपका इंटरनेट स्ट्रांग चले। बस वो 1 घंटा आपका जो पेपर का टाइम है उसमें आपका कनेक्शन का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इवन इफ इट इज कमिंग, प्लीज डोंट गेट पैनिक। You are not supposed to get panic at such situations because panic हो जाने पे हमें ना गड़बड़ कर देते हैं, पता है। परेशान नहीं होना है सबसे पहली चीज, और दूसरी चीज बड़े आराम से पेपर लिखना है, बड़े आराम से सोच समझ के आंसर्स को टिक करना है। एंड once you submit the paper, guys listen very carefully, once you submit your paper, it cannot be redone, it cannot be resubmitted, it cannot be that way that you can check your answers, you can change your answers. No, that option is not available to you at all. Mute everybody, beta mute ओमकार, beta mute कर लीजिए। ओके, नाउ सी, अब आपका पेपर तो गूगल फॉर्म में होने वाला है, ठीक है। हमने गूगल फॉर्म में आपके क्वेश्चंस को पुट अप करना है, ठीक है। देयर विल बी 2 सेक्शंस, लेट मी गाइड यू फर्स्ट। अभी तक तो यही डिसाइड हुआ है, चेंजेस कैन बी देयर। दीज आर द टेंटेटिव डिसीजंस दैट our college and our examination committee has made, and they have informed us, and therefore we are informing you. So these are the tentative decisions that has been made because all of sudden every decision has come up from UGC. Therefore we all are really tensed कि हम लोग को पेपर कैसे इतना इस तरीके से बनाए कि सारे बच्चे क्लियर भी हो जाएं और किसी को मतलब प्रॉब्लम ना हो। तो हमने एक सिंपल चीज रखी है जिससे आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द गूगल फॉर्म्स। आपको हमने याद है ग्रुप में भी भेजे हैं कि आप ये भर दो, फॉर्म भर दो, तो आपको आप लिंक ओपन करते हो, बस आपको लिंक दी जाएगी, आप जैसे लिंक ओपन करते हो तो एक फॉर्म भरने के लिए नाम, ईमेल एड्रेस, रोल नंबर, दिस वुड बी द सेक्शन 1 in which students personal details will be asked, and then after the first section we will have another section of the questions of that particular subject for which you are going to appear,
for which the exam is conducted. समझ आ रहा है? तो आपने 2 सेक्शंस को फुलफिल करना है. पहला सेक्शन होगा आपकी पर्सनल डिटेल्स का और सेकंड सेक्शन जो सेक्शन होगा उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे. ऑल क्वेश्चंस विल बी कंपल्सरी एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क. ओके, तो आपने टेंशन नहीं करना है बिल्कुल. पेपर इज गोइंग टू बी वेरी इजी इफ यू आर गोइंग टू स्टडी प्रॉपरली. मैं इतना अश्योरेंस दे रही हूँ, अगर आपने इन दिनों में पूरा सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज कर लिया ना, अच्छे से बिल्कुल. अब आपको ये नहीं सोचना है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मैम सम थोड़ी पूछेंगे, लेकिन सम के अंदर के बीच की एक भी पॉइंट मैं एमसीक्यू बनाकर पूछ सकती हूँ. सो फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस द सम्स. You don't have to misunderstand that this is MCQ's paper pattern. I can ask anything within your syllabus, within the ambit of your syllabus. I am supposed to ask anything. So you cannot say, मैम ये तो सम के बिल्कुल बीच की एक पॉइंट थी जो हमने अगर सॉल्व करते थे तो ही आता था, लेकिन हमने तो प्रैक्टिस ही नहीं करी थी. आपने प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस करेंगे तो समझेगा कि अच्छा ये वाली पॉइंट है जो एमसीक्यूज के फॉर्म में बन के आ सकती है. इनफैक्ट ट्रू और फॉल्स में भी बन के आ सकती है ना. तो आपने क्या देखना है, आपने पूरा सब्जेक्ट अच्छे से प्रैक्टिस करना है. दिस इज व्हाट आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू. देखो सब्जेक्ट, अब आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या क्या डाउट्स है. हमारे चैप्टर्स कितने हैं? पहला तो हमारा चैप्टर ही सिंपल है बहुत, इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग, उसके कॉस्ट क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोगों ने इनडायरेक्ट डायरेक्ट किया है, व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट. और उसके बाद हमने किया नेचर ऑफ कॉस्टिंग, सॉरी ट्रेसेबिलिटी, कि ये फिक्स्ड कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट है कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है. उसके बाद हमने ये भी सीखा था कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन में ये मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स है कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है. तो आपने ये भी देखना पड़ेगा उसमें. ठीक है, और तो कुछ नहीं है क्लासिफिकेशन में. तो क्लासिफिकेशन के चैप्टर में तो आपको कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, बट आपको स्टडी अच्छे से करना अभी सब, क्योंकि थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. जब एमसीक्यूज आ जाता है ना तो सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है. अगर हम प्रैक्टिकल एग्जाम लिख रहे होते पूरा जैसे नॉर्मल एग्जाम लिख रहे होते, एमसीक्यूज नहीं होता था, तब हमने थियोरी को अगर फोकस नहीं भी किया था तो चल जाता था. पर अब आपने थियोरी को भी फोकस करना पड़ेगा. तो आपको कहीं कुछ डाउट आता है तो प्लीज पूछिए, बिकॉज राइट नाउ देखो मेरे पास तो बुक्स भी नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ डाउट आता है, कुछ लग रहा है कि ये चैप्टर में ये वाला पॉइंट मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पूछिए. जैसे फर्स्ट चैप्टर में तो अगर कुछ डाउट है, चलो चैप्टर वाइज करते हैं. चैप्टर नंबर 1 में ऐसा कुछ है जो आपको नहीं समझ आ रहा है? Now you guys have to be very prompt. एक आंसर करो और मुझे बताओ कि किस में क्या डाउट है. मुझे पता है मैम हम लोगों ने इतने टाइम से स्टडी नहीं किया है, अभी आप सीधा डाउट पूछ रहे हो. I know it's difficult, but still you need to answer now. बिकॉज ये आपके ऊपर है अभी आपको क्या डाउट्स हैं, क्योंकि मैंने कैसे करवाना है 1 घंटे में मैं तो नहीं करवा सकती ना सब कुछ, है ना. 1 घंटे में आप मुझसे बोलिए ना चिट चैट करने के लिए, मैं सारी चिट चैट कर सकती हूँ है ना, लेकिन सब्जेक्ट नहीं कवर करवा सकती. तो आपने डाउट्स पूछने. सो गाइस प्लीज ओपन योर बुक्स, आई एम हियर बिफोर यू, आई एम राइट हियर टू क्लियर योर डाउट्स. प्लीज आप अपने बुक्स ओपन करिए और पेजेस टर्न करिए. चैप्टर नंबर 1 में क्या लगता है मुझे नहीं आ रहा है, और प्लीज मुझसे शेयर कीजिए. Open your books, guys, come on. I can see some people have they have put on their videos and still they are not doing anything. Guys, please open up your books. Let me just check with all students whether anybody has doubt. Please share it with me. मुझे पता है मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप स्टार्ट कीजिए. चैप्टर नंबर 1 को गो थ्रू करो. देखो कुछ भी डाउट आ रहा है क्या? बताइए मुझे. मैम मुझे डाउट है. हाँ जी बोलिए. आई थिंक अथीरा हैज वन डाउट. अथीरा बेटा आप ही हो ना? हाँ मैम मैं ही.
हाँ जी बोलिए बेटा। मैम ड्राइंग ऑफिस सैलरी का मीनिंग क्या है? हाँ अब देखो, ये ना वो सैलरी होती है जो, ये ना फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं। अब ड्राइंग ऑफिस सैलरी क्या होता है, जब एक फैक्ट्री का मैनेजर होता है ना, फैक्ट्री का मैनेजर, उसको हम जब सैलरी दे रहे होते हैं ना, जब उसको हम सैलरी दे रहे होते हैं ना, ये पूरी फैक्ट्री मैनेज करते हैं, तो जब हम उसको सैलरी दे रहे होते हैं ना, अपने अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा उसे निकाल के दे रहे होते हैं ना, तो उसे कहते हैं ड्राइंग ऑफिस सैलरी। अब ये ऑफिस नाम से कंफ्यूज मत हो जाना कि ये ऑफिस ओवरहेड्स है, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं। ऑफिस सैलरी का मतलब है आपने जो भी ऑपरेशंस, आपके बिजनेस के जो भी ऑपरेशंस हुए ना, आपकी जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज हुई, ट्रांजैक्शंस हुए, उससे रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितना भी आपने अर्न किया, और उसको देखने के लिए जो बंदा अपॉइंट किया था उसको सैलरी देनी है, तो उसे कहते हैं ड्राइंग ऑफिस सैलरी। ठीक है, और ये कहाँ ओके। जाते हैं, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाते हैं। ठीक है, इतना भी समझ के, हाँ मतलब मैम। इन शॉर्ट अगर ऐसा पूछा जाएगा, देखो मैं आपको ना हिंट भी दे रही हूँ, सिर्फ डाउट्स नहीं क्लियर कर रही हूँ, हिंट भी दे रही हूँ कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कितने तरीके हैं इसको पूछने के। देखो या तो ये पूछा जाएगा ये कहाँ जाएगा, फैक्ट्री, ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, नन ऑफ अबव। देखो नन ऑफ अबव और ऑल ऑफ अबव ना हमको अभी के लिए मना किया है, हम टीचर्स को गाइडेंस मिली है कि नन ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव, ये सारे ऑप्शंस है ना नहीं देने। अभी तक तो यही है, टेंटेटिव है, मैं फिर से बोल रही हूँ, चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ना मतलब ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, ये एक तरीका है ये क्वेश्चन को पुट अप करने का। दूसरा तरीका है इट इज इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। अब ये आप मुझे बताइए, चलो अथीरा अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अब आप मुझे बताइए ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, ये खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में आते हैं कि इनडायरेक्ट में आते हैं? हम्म, थोड़ा गैस करो, चलो कोई और भी बता सकता है। हाँ जी प्रीति बोलिए, बोलो बेटा प्रीति, आप बोल रहे थे कुछ। इनडायरेक्ट मैम। इनडायरेक्ट, वेरी गुड, इनडायरेक्ट आएगा ना। क्यों इनडायरेक्ट आएगा, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे इनडायरेक्ट के पार्ट्स हैं। डायरेक्ट में तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड्स होता है ना। ठीक हाँ है, मैम। तो ये इनडायरेक्ट हो गया। मतलब एक क्वेश्चन को आप मतलब ऐसे समझिए किसी किसी तरीके से पूछा जा सकता है ना। अच्छा और कोई डाउट है? देखो डाउट से कितनी सारी चीजें, तीन चीजें क्लियर हो गई एक डाउट से। देयर आर थ्री डिफरेंट थिंग्स दैट हैज बीन क्लियर टू यू ऑल, एंड आई होप दैट हैज क्लियर। प्रीति मैम एक सेज, और डाउट है। एक मिनट बेटा अथीरा, प्रीति आपको आवाज नहीं आ रही, अब बाकी सबको आवाज आ रही है? आ रही है मेरे को। यस आ रही है मैम। ना। हाँ तो बेटा प्रीति आपके साइड से प्रॉब्लम होगा, आप थोड़ा अपना कनेक्शन का प्रॉब्लम चेक करो। बेटा प्रीति आपके यहाँ से प्रॉब्लम होगा। अच्छा और क्या अथीरा बोलिए, और क्या डाउट है बोलिए। मैम रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन करके है, वो डायरेक्ट मटेरियल में कैसे जाएगा? रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, देखो बेटा डायरेक्ट में क्यों जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड बोला जाता है उसको। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए, डायरेक्ट मटेरियल के अंदर एक 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 वो हेडिंग आती है जिसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ये कहते हैं। ठीक है, अब जब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कह दिया ना, तो सिर्फ उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सिर्फ ये ही नहीं आता है। इसके अलावा रॉ मटेरियल पे आपने जितने खर्चे करे थे वो सब यहीं आते हैं। रॉ मटेरियल पे रॉयल्टी भरी थी, यहीं आएगा। कैरेज इनवर्ड भरा था, यहीं आएगा। फ्रेट इनवर्ड का खर्चा किया था जब रॉ मटेरियल खरीद रहे थे, यहीं आएगा। सारे कॉस्ट में ऐड होता जाएगा, क्योंकि कॉस्ट, कॉस्ट मतलब खर्चा, आपने रॉयल्टी के नाम पे खर्चा किया, खर्चों में खर्चे ऐड हो जाएंगे। आपने फ्रेट इनवर्ड के नाम पे खर्चा किया था, खर्चों में खर्चे ऐड हो जाएंगे। अब समझ आ रहा है? ये आपने जो आप जो डाउट पूछ रहे हो वो डायरेक्ट मटेरियल क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल के अंडर में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आते हैं, और उसी में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल,
add royalty on raw material, add freight inward on raw material, carriage inward on raw material, less closing stock of raw material. इसीलिए इसे डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, क्योंकि ये मटेरियल से डायरेक्टली रिलेटेड है. अगर मटेरियल खरीदेंगे ही नहीं तो रॉयल्टी क्यों पे करेंगे? अगर मटेरियल खरीदा ही नहीं तो कैरेज इनवर्ड क्यों पे करेंगे? There is no such need arises if you don't purchase raw material. It is only then possible if you have purchased raw material. Otherwise, it is not possible to pay the raw material. And if it is not there, why we will show it? And if it is there, it is directly associated with raw material, and therefore it has to be shown in the direct material. अभी क्लियर है अथीरा बेटा? हाँ हाँ यस मैम. हाँ जी. अब आप बताइए और क्या डाउट है? हाँ जी, कोई और डाउट? और कोई डाउट ही नहीं पूछ रहा. अथीरा ने पास होना है, बाकी सबने क्लियर नहीं करना है. पढ़ो ना, बुक खोलो ना. अरविंद क्या कर रहा है? मैं भूल गया हूँ. भूल गया? क्या भूल गया? पढ़ाई नहीं करी है ना, तेरी गलती है ना. आप जब मैं रिवीजन लेक्चर ले रही थी ना, पता है तब भी तू नहीं होता था. 20 से 25 बच्चे आते थे और आज इकट्ठा मैम एग्जाम आ गया है तो मैम सब कुछ हमको बता देंगे पेपर में क्या आने वाला है और अरे ये क्वेश्चन आने वाला है, आज का तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बैठो कैसे भी करके नींद से उठ के बैठ जाओ. है ना? तुम लोग को यही लगा होगा, है ना? हंस रहा है ना बदमाश. मैं तो हाँ, तो मैं आपको क्वेश्चंस नहीं बताने के मैं आपको क्वेश्चंस बताने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ पे. क्वेश्चन के तरीके बताने के लिए बैठी हूँ, कैसे तरीके आ सकते हैं. ठीक है, वो भी मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, समझा? एक्चुअली तो मुझे बताना नहीं चाहिए, वो भी मैं आपको टेंशन कम करने के लिए आपका हेल्प कर रही हूँ. थैंक यू. हाँ, टेंशन नहीं उतना है मैम. टेंशन नहीं है ना, क्योंकि तुझे लगता होगा अरे कोई बात नहीं गूगल से कॉपी कर लेंगे. ऐसा सोचना भी मत, ऐसा सोचना भी मत. हाँ, क्योंकि है ना आपके ऊपर एक ट्रैकर रखा गया है, ये ना स्टूडेंट्स को बताया नहीं जा रहा है. हाँ, ये ना स्टूडेंट्स को जो हेलो मैम, जो लिंक सुनो मेरी बात, जो लिंक ओपन करेगा ना वो ट्रैक सिस्टम में आ गया. अब जो ट्रैक सिस्टम है ना वो आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, एग्जाम के टाइम पे आप क्या कर रहे हो, वो ट्रैकर देख रहा है. दूसरे फोन से तो कर सकते हैं ना मैम. आप करो ना, आप करो. देखो जब आप ट्रैकिंग सिस्टम में आ गए ना तो सब कुछ पता लग जाता है. दूसरे फोन से कुछ नहीं कर सकते आप. वो ट्रैकर मेरे भाई ने बनाया मैम. अच्छा, तेरे भाई ने बनाया है? क्या बता रहे हैं आप? ट्रैकर रखा है अभी मेरे क्या क्या सितेश? आप बता रहे ट्रैकर रखा है, ऐसे कैसे ट्रैकर रखेंगे? हाँ रखा है तुम लोग को. मैम वेब कैमरे से होता है ना, उसमें इंडिविजुअल से ज्यादा फाइन करेंगे तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है वो. ये कहता हाँ, तो आप है ना अपने दिमाग में चलाओ और गूगल सर्च करने की कोशिश भी मत करना, और एक दूसरे से पूछने की तो बिल्कुल चांस ही नहीं. आपको पता है, सुनो देखो, ये चीज ना हो, स्टूडेंट्स गूगल सर्च ना करें, एक दूसरे से व्हाट्सएप पे ना पूछें, इन सब के लिए ना एक तो ट्रैकर सिस्टम बनाएं. दूसरी चीज ये है कि आपके पास जो टाइम लिमिट है ना, टाइम लिमिट, आप मेरी बड़े ध्यान से बात सुनिए. 50 ऑब्जेक्टिव्स है, 50, आप समझ रहे हो? 50 एमसीक्यूज हैं, बहुत ज्यादा हैं, और 50 के लिए आपको टाइम दिया गया है 1 आवर, सिर्फ और सिर्फ 1 आवर. ज्यादा है मैम. पता है मुझे ज्यादा है, आपको टिक 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 करना है सिर्फ. लेकिन जब हम सोच के समझ के चीजों को, क्वेश्चंस को पढ़ के जब हम आंसर को टिक करते हैं ना, तब बच्चों को लगता है कि ये तो कम टाइम है. तो अब आपने सोच समझ के आंसर को टिक करना है, क्यों? बिकॉज देयर इज देयर इज नो सच ऑप्शन ऑफ रीडू. यू कैन नॉट रीडू योर आंसर्स. नो, आपने एक बार सबमिट कर दिया ना, रीडू नहीं कर सकते. टिक कर दिया तो रीडू कर सकते हैं ना? हाँ, टिक करने के बाद मेरे भाई रीडू कर सकते हैं, लेकिन उसको सबमिट, हाँ, लेकिन सबमिट करने के बाद नहीं कर सकते हैं ना. तो आपने 1 घंटे में उसको बराबर पढ़ना है, बराबर आंसर करना है ना. आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू? तो आपके पास सिर्फ 1 घंटा रहेगा,
उसमें आपने गूगल सर्च भी करना है, उसमें आपने एक दूसरे से पूछना भी है, फिर क्वेश्चन पढ़ के आंसर भी देना है, तो ये पॉसिबल नहीं है 1 घंटे में। फिर आपका पेपर रह जाएगा, पेपर रह गया मतलब फेल। हेलो मैम। हेलो मैम एक डाउट है। हाँ जी प्रतीक्षा, बोलो बेटा। मैम पर अपना 40 मार्क्स का एग्जाम तो हो चुका है ना, अरे फिर मेरा 60 बच्चा, मार्क्स के लिए सिर्फ 50 मेरा बच्चा MCQ। सुनो, मैं समझ गई, हाँ आपने जैसे ही डाउट रेज किया ना 40 बोला, मैं समझ गई, क्योंकि मुझे पता है ना मेरे बच्चों को क्या क्या डाउट्स आ सकते हैं। आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड, है ना। अच्छा ठीक है, सुनो सुनो, मैं आपको बताती हूँ। हाँ देखो ये ना, ये तो सिर्फ हमारे कॉलेज का एग्जाम नहीं है बेटा, ये ना पूरा मुंबई यूनिवर्सिटी का एग्जाम हाँ चल रहा है, वो पूरा जितने भी कॉलेजेस हैं। अब हमारा कॉलेज 60-40 है, बराबर। किसी और का कॉलेज 60-40 नहीं है, 75-25 है, किसी का कॉलेज में भी 80-20 करता हो, बराबर। ठीक है। अब सबके लिए रूल बनाया, सबके, अभी हम अलग से, यूजीसी ने एक ही रूल बनाया 50 का, अभी अलग से 60 का तो नहीं बना सकते, अलग से 75 का भी नहीं बना सकते, इसीलिए यूजीसी ने एक पैटर्न बनाया 50 का, 50 एमसीक्यूज। अब हम, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको 50 में से समझो 45 मिली, 50 में से कितना मिला आपको 45, तो आपको 60 में 45। से कितना मिलना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको प्रोपोर्शनेट मार्क्स देने की। मैम 10 मार्क्स दे दो ना। क्या 10 मार्क दे दो सिद्धेश, एक लगाऊं तुझे, 10 मार्क दे दो। हाँ इतना मैम पढ़े। तो हाँ, उसको पास सुनो, कर दे। 50 मार्क्स में से आपने जितना स्कोर करा है, सुनो बड़े ध्यान से, मस्ती अपार्ट, तुम्हारी मस्ती एक साइड, लेकिन बड़ा सीरियस क्वेश्चन है ये जो प्रतीक्षा ने पूछा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप 50 में से कितना स्कोर कर रहे हैं। अच्छे से अच्छा मार्क आप 50 में से स्कोर करेंगे तो 60 हम अपने आप उसको कन्वर्ट करके देंगे आपको, 60 का कितना, अगर 50 पे आपने इतना स्कोर किया तो 60 पे आप कितना स्कोर कर सकते थे वो हम कन्वर्ट करेंगे। वो हमारा लुकआउट है, वो आपका लुकआउट नहीं है, और हम किसी के साथ अनफेयर नहीं कर रहे हैं, उसकी भी फॉर्मूला हमको यूजीसी ने बताई है, हम खुद नहीं, हम टीचर्स कुछ नहीं, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हमारे प्रिंसिपल ने हमको गाइड किया है। तो आप टेंशन ना लें, किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होगा, आपने भी अनफेयर मीन्स को नहीं अपनाना है, कॉपी नहीं करनी है, जो करना है अपने बलबूते पे, अपने दिमाग से, अपना नॉलेज आपने जो गेन किया उस हिसाब से करिए, ठीक है। और डाउट्स पूछिए। तो मैम और एक डाउट है। हाँ जी बेटा, बोलो बोलो। अभी आपने क्या कहा हाँ कि जी, पढ़ाई करने के बाद ही अच्छा मार्क्स मिल रहा है, हाँ बराबर। बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी पूरे 6 महीने में 60 मार्क्स अपना 50 MCQs आएगा, तो हाँ 6 महीने में सिर्फ आधा पढ़ाई हुआ है, तो 25 हम लोग कर लेंगे, 25 क्वेश्चंस आप तो दो हमें। माय गॉड प्रतीक्षा, ये मार ये खाएगी कोई तू तरीका मेरी। है भीख मांगने का? ये कोई तरीका है भीख मांगने का? मैम टेंशन आ रहा है बहुत। टेंशन नहीं कैसे बेटा होगा करके। प्रतीक्षा, हेलो मैम। मैंने शुरुआत, हाँ सिद्धेश बोलो बेटा, बोलो। मैम को वो बोलने देना वो सिद्धेश, बीच बीच में काय को बोल रहे हैं। हेलो हाँ हाँ सिद्धेश बोलो बोलो, कोई बात मैम, वो नहीं। क्वेश्चन बैंक का बोला था बीकॉम वाले दोस्तों ने, तो हाँ उसका क्वेश्चन बैंक का देने वाले क्या? बेटा देखो मेरी बात सुनो, अब लिटरली क्वेश्चन बैंक नहीं मिलेगा, वो बीकॉम वाले से क्यों बोले मुझे नहीं पता, हमको जो गाइडेंस दी गई ना बेटा हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आपने सबसे पहले मैंने आपको ये चीज बतानी है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। टेंशन लेने से ओके मैम। आधी चीजें खराब हो जाती हैं, बड़े आराम से पढ़िए, बड़े आराम से, जो चीज नहीं समझ में आ रही आप एक काम करिए, ये मंडे से थर्सडे हाँ तक आपको जो डाउट हाँ आता है ओके। ना, अभी ये तो ऑफिशियल लेक्चर हमने रखा है 10 to 11, क्योंकि हमको हमारे प्रिंसिपल ने बोला है 10, आपने ना 1 घंटा एक दिन में बच्चों को देना है रिवीजन का, एक सब्जेक्ट का एक दिन पे, मतलब टोटल एक सब्जेक्ट के लिए 2 घंटे होने चाहिए जो बच्चों को हमने देने हैं, ठीक है। उसके अपार्ट अब आप बोलोगे मैम 2 घंटे में सब कुछ तो नहीं हो सकता, जैसे मैं कह रही हूँ वैसे आपकी बात भी सही है, तो आपने क्या करना है, मंडे टू थर्सडे सिर्फ रात को 12 बजे के बाद प्लीज मेहरबानी करना मेरे मोबाइल पे कोई मैसेज मत करना, ठीक है। 12 बजे से पहले, रात के 12 बजे से पहले सुबह के 8 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट आता है आप पढ़िए, आप सम को सॉल्व कीजिए,
चैप्टर नंबर 1 में मैम ये डाउट है, एडवांस कॉस्टिंग, मैं टीवाई बीबीआई का स्टूडेंट हूँ, प्लीज मुझे ये डाउट क्लियर करिए, क्योंकि सबका नंबर तो मेरे पास सेव नहीं है ना, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई भी मैसेज करेगा मुझे पता नहीं चलेगा, तो आप प्लीज क्लास और नाम लिखिए अपना, और उसके ऊपर आप अपना मैसेज लिखिए व्हाट्सएप पे, मेरे को पर्सनली, मेरे पर्सनल विंडो पे मैसेज छोड़िए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो भी डाउट है वो चैप्टर, सब्जेक्ट का नाम, चैप्टर, और चैप्टर के साथ आप मुझे अपना डाउट लिखेंगे। मैं कोशिश यही करूंगी, माय 100% आई विल ट्राई टू क्लियर द डाउट ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी मैं मंडे टू थर्सडे तक मैं 12 जितना टाइम मैं आपको बोल रही हूँ मैं व्हाट्सएप पे क्विक टाइम पे अवेलेबल रहूं, ठीक है। बट स्टिल सपोज अगर, क्योंकि 7:30 to 9:30 ना इवनिंग में मेरा कुछ अपना पर्सनल अफेयर, म्यूंडेन अफेयर होता है, तो मैं शायद उसमें आपको आंसर नहीं कर पाऊँ, तो 9:30 के बाद फॉर श्योर मैं आपको आंसर करूंगी। तो ये सिर्फ 7:30 to 9:30 इवनिंग वाला मेरा प्रॉब्लम है, बाकी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो भी मेरा कुछ अपना, मेरा घर का कुछ प्रॉब्लम है, वो मैं उसमें बिजी रहूंगी। तो आपने क्या करना है, सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पे छोड़ देना है पर्सनल विंडो पे मैसेज पे, उसके बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे ना हम वहाँ ऑन द स्पॉट क्लियर कर देंगे। या फिर आपको चाहिए तो जैसे हम चारों दिन, मैं तो चारों दिन लेक्चर में अवेलेबल हूँ, ऑल 4 days आई एम देयर विथ यू, ऑल 4 days। सो आपको लगता है कि आप एडवांस कॉस्टिंग का डाउट है तो वेनेसडे को भी पूछ सकते, थर्सडे को भी, ऑल्दो मैंने SAPM के लिए रखा है वेनेसडे और थर्सडे, बट स्टिल अगर आपको एडवांस कॉस्टिंग का डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। मैं 100% ट्राई करूंगी आपके जितने डाउट्स हैं वो सब क्लियर करूं, मैं 100% ट्राई करूंगी। देखो सुनो मेरी बात, आपको फिर भी लगता है ना कि ये 4 दिन में जो 4 घंटे वो पूरे नहीं पड़े, आपको लगता है ना, तो मैं आपके लिए, देखो आप किसी को बोलना मत ये, आपके लिए आपको चाहिए तो मैं अपार्ट फ्रॉम दिस टाइम टेबल, जो टाइम टेबल आपको मिला है, अपार्ट फ्रॉम दिस हम आधा पौना घंटा इवनिंग में या आफ्टरनून में या 8 बजे के बाद, 9:30 बजे के बाद हम फिर से मिल सकते हैं जूम पे। आपको लगता है तो आप मुझे बताना कि ये मैम 4 घंटे अवेलेबल जो आपने करके दिए हमको वो इनफ नहीं है, तो आप मुझे बताइएगा। मैम हाँ जी, अब और कोई डाउट है? अब चैप्टर नंबर 2 में आ जाओ। देखो चैप्टर नंबर 2 तो सबसे ज्यादा इजी है, कॉस्ट शीट है। कॉस्ट शीट में क्या डाउट है, किसी को कोई डाउट है कॉस्ट शीट में? देखो कॉस्ट शीट का ना मैं आपको एक बार फॉर्मेट याद करवाती हूँ, रिवीजन हो जाएगी आपकी। कॉस्ट शीट में सबसे पहले आपको चाहिए मैं वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करके उसमें लिखती भी जाऊं, ऐसा चाहिए कि सिर्फ बोलती जाऊंगी और चलेगा? सिर्फ बोलते जाओ, हाँ ठीक है, बुक्स तो है ही ना आपके सामने, लिखते जाओ मैम। रखो अपने सामने, बुक्स रखो, ओपन करो। आपके जो आपने जो सम सॉल्व किए ना उसके पहले आपने फॉर्मेट लिखा था, मैंने लिखवाया था आपको, प्लीज ओपन दैट फॉर्मेट, में आपको एक बार रिवीजन करा देती हूँ। सिर्फ फॉर्मेट की सम्स नहीं करवाती बैठ सकती मैं, टाइम नहीं है उतना हमारे पास। हाँ तो फॉर्मेट शुरू होता है आपका, अभी देखो कॉस्ट शीट में ना प्राइम कॉस्ट होता है, सबसे पहले प्राइम कॉस्ट होता है, पर प्राइम कॉस्ट में 3 चीजें होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड्स। सही बोल रही हूँ मैं? फॉर्मेट ओपन किया है? हाँ तो सबसे पहले आप है ना ऐसे याद करो, कॉस्ट शीट में सबसे पहली चीज होती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में 3 चीजें होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड्स। तीनों को चीजों को ऐड करने से मिलेगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने हैं, आपको मिलेगा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट के बाद नेट वर्क्स कॉस्ट आते हैं, लेकिन ग्रॉस से नेट पे आने के लिए आपको WIP मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP करना पड़ेगा, तभी तो आप ग्रॉस से नेट पे आएंगे ना। तो ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट के बाद आपको ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, आपको मिलेगा नेटवर्क्स कॉस्ट। अब जैसे ही आपने नेटवर्क्स कॉस्ट पे आप पहुंच गए, आपको ऐड करना है, देखो सबसे पहले क्या ऐड किया था, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद WIP आता है, ऐसे याद रखो सीक्वेंस को। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद क्या आता है, WIP आता है, ओपनिंग क्लोजिंग। फिर WIP के बाद क्या आएगा, ऑफिस ओवरहेड्स आएगा। तो नेटवर्क्स कॉस्ट के बाद क्या आएगा, ऑफिस ओवरहेड्स।
ठीक है। ऑफिस ओवरहेड्स जब आप ऐड करोगे नेटवर्क्स कॉस्ट में तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ऐड एंड लेस करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। मतलब आपको देखो सीक्वेंस कैसे है, मतलब पहले आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद WIP क्या ओपनिंग एंड क्लोजिंग, फिर ऑफिस ओवरहेड्स के बाद फिनिश गुड्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग। देखो कितना इजी है फॉर्मेट, ऐसे याद करोगे तो। फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के बाद आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फिर आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स पे आना है। जैसे आपने फैक्ट्री के बाद WIP, फिर ऑफिस ओवरहेड्स, फिर उसके बाद फिनिश गुड्स, अब आएगा सेलिंग। मतलब हर फैक्ट्री ऑफिस सेलिंग तीनों के बीच में WIP और फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग। कितना इजी है फॉर्मेट, याद करना है ऐसे। आ रहा है समझ में कि नहीं? यस आ रहा है समझ। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद क्या ऐड करोगे? ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट। ये आपकी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट है। इसमें प्रॉफिट ऐड करो, जितना आपको प्रॉफिट चाहिए 20% 40%, आपको मिल जाएगा सेल्स, और आपका फॉर्मेट खत्म। कभी कभी प्रॉफिट है ना ऐसे दिया जाता है 20% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट पे ही प्रॉफिट लगाएंगे ना, सिंपल है। लेकिन कभी कभी दिया जाता है 40% ऑन सेल्स। अब 40% ऑन सेल्स बोलेगा तो सेल्स तो मैंने निकालनी है, दी तो नहीं हुई है। अब जब सेल्स दी हुई नहीं है तो मैं 40% किस पे अप्लाई करूं? तो ऐसे पॉइंट पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा कि अगर मेरी कॉस्ट है 3 लाख रुपीज, समझो टोटल कॉस्ट, जो मैंने ये अगड़म बगड़म करके टोटल कॉस्ट निकाली है। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस, अभी आवाज आ रही है सबको? हाँ आ रही है ना? ठीक है, सॉरी वो क्या कहते हैं कनेक्टिविटी प्रॉब्लम था। अभी सबको आवाज आ रही है ना? यस मैम। Yes, ma'am. ओके ओके, जस्ट अ मिनट। यस, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, प्लीज एक बार मुझे रिमाइंड करवा दो। कॉस्ट शीट पे थे मैम हम लोग। हाँ जी, तो ना कॉस्ट शीट पे, हाँ मतलब इन शॉर्ट में आपको ये बता रही थी कि इस फॉर्मेट में अगर सेल्स नहीं दिया जाएगा, हमको सेल्स निकालना है और प्रॉफिट भी सेल्स पर दिया है, तो हम क्या करेंगे? सपोज आपने टोटल कॉस्ट निकाली, पूरा फॉर्मेट अप्लाई किया, कॉस्ट निकाली आपने, टोटल कॉस्ट थी आपकी 3 लाख रुपीज। अभी सेल्स तो पता नहीं है, लेकिन उसने प्रॉफिट बोला है 40% ऑन सेल्स। अब सेल्स तो है ही नहीं ना, तो 40% ऑन सेल्स कैसे अप्लाई करूं? सो फॉर दैट यू नीड टू कैलकुलेट सेल्स। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट सेल्स। सो आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर सेल्स बोला है 100% है, प्रॉफिट बोला है 40% है, तो कॉमन सेंस से कॉस्ट 60% होगा ना। मुझे इतना पता है कि सेल्स 100% है, लेट अस अज्यूम सेल्स एज 100%। इतना पता है प्रॉफिट 40% है सेल्स का, तो 100 का 40% कितना होता है? 40। तो 100 में से, मुझे ना सिद्धेश को देख के हंसी आ रही है। सिद्धेश, तू है ना अपना वीडियो ऑन मत कर प्लीज। तू है ना मास्क पहनकर बैठा है, गॉगल पहन के बैठा है, तो वो जो सन ग्लासेस होते हैं ना वो घर के अंदर पहन के बैठा है। हाँ, तू अपना वीडियो ऑन नहीं करेगा, समझ में आ रही है तेरे को बात? मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ तेरे वीडियो की वजह से, गधेड़ा। ठीक है मैम उसके ऊपर ध्यान मत दो, उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। अरे मेरे सामने तो बच्चा, मैं लैपटॉप ओपन करके बैठी हूँ, मेरे सामने पूरी स्क्रीन सबके चिट्ठे दिख रहा है, कौन वीडियो ऑफ करके बैठे, कौन ऑन करके बैठे, तो मुझे सब Okay. पता ही चल रहा है। और अरविंद, तू बार बार जो सो जा रहा है ना, वो सोना नहीं है तुझे, ना तुझे सोना नहीं है, समझ में आई बात? मुझे पता लग रहा है। सो जा रहा है बार बार। हाँ, चलो
ओके, मस्ती अपार्ट, पहले सिलेबस। ओके, तो कहाँ थे हम? थे हम सेल्स पे। तो अब समझो कॉस्ट दी हुई है 3 लाख, तो हमने सेल्स को अज्यूम किया 100%, ठीक है, अज्यूम कर लिया क्योंकि पता ही नहीं है ना, तो अज्यूम कर लिया। अब प्रॉफिट कितना था सेल्स पे 40%, मतलब 100 का 40% 40। अब सेल्स को प्रॉफिट में से जब हम माइनस करते हैं, सेल्स को प्रॉफिट में से जब हम माइनस करते हैं तो कॉस्ट मिलती है, इतना तो आपको पता है।